Hello and welcome to One Academy. My name is Nidhi and I have secured rank 286 in Civil Services examination in 2020. Today I'll be discussing about my GS3 strategy. I have scored 431 in GS total. That is one of the highest this year, and I have scored 107 in GS3 paper, which is also one of the highest. A very brief introduction about me that I have secured rank 286 in Civil Services examination. I have done my graduation and post graduation in chemistry from Hansraj College, Delhi University, and I come from Sonipat, Haryana. First of all, a very brief input or a very brief detail about the syllabus of paper 3, that it comprises of Indian economy, agriculture, disaster management, internal security, science and technology, environment and ecology. Usually what happens that we tend to focus our entire energy and our entire efforts on one particular subject, that is Indian economy, and we tend to forget all other five subjects जिसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं एंड वी ऑल्सो थिंक कि इन सबको प्रीलिम्स के बाद जो है हम कर लेंगे. साइंस एंड टेक एनवायरमेंट इकोलॉजी को हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से पढ़ते तो हैं, बट द काइंड ऑफ सिलेबस दैट इज़ रिटन देयर in our GS paper 3 syllabus that is mentioned there, काफ़ी डिटेल है, काफ़ी थीम्स वहाँ पे लिखी हुई हैं जैसे रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एंड आई थिंक वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट UPSC is expecting from all of us, what it wants to ask. We usually devote our entire time not just on Indian economy but on the current affairs, the monthly magazines that are available regarding the Indian economy, and we forget about all these five other subjects which also are an important aspect and part of the paper 3. And if you want to join my live class series on Unacademy Plus, you can use the code NIDHI286. Here I'll discuss about my detailed strategy about answer writing, essay writing, and also my detailed strategy about my GS, how I scored 431. That is one of the highest this year. So we'll be discussing and taking classes on Unacademy Plus. Use my code NIDHI286. Also, you can go to Unacademy and have classes of other educators as well, like Nunal Patel sir, Prateek Naik sir, Abhishek sir. A basic trend about the GS3 paper, you can have a look at the number of questions that the different topics from different topics that are coming there. We have seen that growth, development, poverty, employment and unemployment, usually एक से दो क्वेश्चन इसका जो है हर साल आ रहा है. देन वी हैव मैक्रो इकोनॉमी, जहाँ पे गवर्नमेंट बजटिंग, टैक्सेशन, इस बार जैसे GST था 2018 में जो है बजटिंग था, उससे पहले भी जेंडर बजटिंग पूछा गया है, तो ये सेक्शन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. वी हैव सीन अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पार्ट. आप उससे पहले एक बार देखिए कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, यहाँ से भी 2 क्वेश्चंस और 2020 में भी 2 क्वेश्चंस, यहाँ से भी 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं. देन if you combine biodiversity and conservation, environment pollution, environment impact assessment, so all these topics also have 3 to 4 questions every year. तो 20 questions में से अगर 3 से 4 टॉपिक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आ रहे हैं, it becomes very important. Then we have farming, major crops and cropping patterns, technology missions, land reforms, food processing industries, irrigation and farm mechanization. तो आप ये सब जो है एग्रीकल्चर वाले पार्ट में आएगा, PDS, MSP, फूड सब्सिडीज़. तो एक एक क्वेश्चन इन अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 क्वेश्चन इट बिकम्स. तो दैट बिकम्स कि आपका जो 4 to 5 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, तो 25% पेपर जो है आपका यहाँ से आ रहा है. तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर जो है फोकस करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है. सिमिलरली साइबर सिक्योरिटी, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, इट बिकम्स 5 क्वेश्चन. आप देखिए 2019 में इन तीनों से मिला के 5 क्वेश्चन आए हैं. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस पर भी फोकस करें. तो इसलिए वन एडवाइस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू हियर, don't just focus on Indian economy. It's not a paper of Indian economy, it's a paper of 6 subjects, that is agriculture, Indian economy, disaster management, internal security, science and technology, environment and ecology.
आप जो है यहाँ से आपको ऑल ऑफ द सब्जेक्ट्स सभी पे आपको जो है इक्वल फोकस करना है। एक बार आप ट्रेंड देखिए, एनालाइज कर कीजिए किस तरीके से जो है क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे जो है आपका फोकस हो रहा है। जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ इज़ वन टॉपिक जहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है। सिमिलरली गवर्नमेंट बजटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट मॉडल्स पे भी काफ़ी बार क्वेश्चंस लगातार 2013 से लेके 2017 तक आप जो है देख सकते हैं। सिमिलरली मेडिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी यूजुअली एक क्वेश्चन जो है इस थीम से भी उठ के आ जाता है हर साल। पीडीएस फूड प्रोसेसिंग से भी हर साल जो है एक लगभग एक सवाल यहाँ से भी रहा ही है। 10 डिज़ास्टर मैनेजमेंट से 2 to 3 क्वेश्चंस, फोकस ऑन दैट एज वेल। देन द इंटरनल सिक्योरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, 5 क्वेश्चन के लगभग 2019 में पूछे गए थे। देन 17 में भी जो है 5 क्वेश्चन हैं। सिमिलरली इन 2016। तो आप जो है थोड़ा देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं। सो एक सही अप्रोच जो है आपको यहाँ पे दिखानी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स इक्वली। हमने देखा है कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंटरनल सिक्योरिटी, सारे सब्जेक्ट्स को हम जो है इग्नोर कर देते हैं या सीन टू बी पेरिफेरल सब्जेक्ट्स कि इनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। यदि किसी सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर पेपर में, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियन इकोनॉमी से उससे कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस साल, तो आप ये देख सकते हैं कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस कितना है एंड आपको उसको इग्नोर नहीं करना है। और बिल्कुल भी उसका जो आंसर राइटिंग है वो तो डेफिनेटली इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको सही अप्रोच और आपको अपने एफर्ट्स जो हैं वो कहाँ पर लगाने हैं? वो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू एनालाइज करेंगे। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए कि आप वहाँ पे कौन से थीम्स, जैसे मैंने आपको बताया, ट्रेंड क्या रहा है, कौन से सब्जेक्ट से, कौन से टॉपिक से, किस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं या किस टॉपिक को इग्नोर किया गया है। तो आप भी जो अपनी प्रेपरेशन है, जो आपका रेफरेंस मटेरियल है, आप उसी के अकॉर्डिंग जो है अपनी तैयारी कीजिए। सिलेबस से कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स जो हैं आप आइडेंटिफाई कीजिए कि ये सिलेबस आपको लिखा हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि सिलेबस क्या है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडियन इकोनॉमी। देन आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वहाँ से क्या पूछे गए हैं। आप उनका ट्रेंड देखेंगे कि कौन से टॉपिक से क्या पूछा गया है। देन आप अकॉर्डिंगली अपने जो है नोट्स बनाएंगे। अब जो बात करें अगर हम राइट नोट्स की, तो क्योंकि जो पेपर 3 है काफ़ी जो है फैक्ट डेटा इंटेंसिव एक टॉपिक रहता है इकोनॉमी का भी, इवन इंटरनल सिक्योरिटी का, कि किस तरीके से जो एक ट्रेंड्स हैं जो इमर्ज हो रही हैं, या फिर साइंस एंड टेक में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं बायोटेक के सेक्टर में या नैनोटेक के सेक्टर में या स्पेस टेक के सेक्टर में। तो जितने भी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 थीम्स बनते हैं इवन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी, तो काफ़ी नॉलेज इंटेंसिव है। तो यहाँ पे आप जो एक अप्रोच यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ फ्लैश कार्ड। आप एक जो A4 साइज शीट है आप उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एंड देन आप उसको जो छोटा छोटा जो अपने फ्लैश कार्ड हैं आप उस पर जो अपना जो फैक्ट है, डेटा है, उस पर उसके रिगार्डिंग अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कोई कोट है, हालांकि पेपर 3 में ज़्यादा कोट कुछ सच यूज़ नहीं होता है, लेकिन फ्लैश कार्ड आपको क्या हेल्प करेगा, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ आपको चीज़ें, जैसे जो करंट अफेयर्स 1+1 ईयर का, जैसे 2020 की अगर मैं बात करूँ, देयर वर सर्टेन क्वेश्चंस लाइक नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, जल शक्ति अभियान। तो ये सब जो है 2019 के करंट अफेयर्स थे। बट व्हाट हैपेंड कि मैंने अपने जो फ्लैश कार्ड्स, जब 2019 का मीन्स व्हेन आई वाज राइटिंग दैट, तो आई मेड सम फ्लैश कार्ड्स और उसमें से ये टॉपिक्स थे। अगर फ्लैश कार्ड्स जैसे मैंने बनाए उस पर कुछ एफर्ट लगाया तो इट हेल्प मी। तो आपके जो एफर्ट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट नेवर गोज़ वेस्ट, कभी आपके एफर्ट वेस्ट नहीं जाएंगे। और दूसरी बात कि वो आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू स्टेज पे आपको हेल्प करेंगे। तो एक छोटा सा अप्रोच कि आपका क्विक रिवीजन, क्योंकि जो मेंस के पेपर होते हैं, पेपर के बीच में ब्रेक जो होता है उसमें उतना टाइम नहीं है कि आप सब कुछ रीड कर सकें, काफ़ी कम टाइम होता है। तो रिवीजन के लिए कि आपकी जितना भी नॉलेज आपने गेन किया है वो आप कर सकें। जैसे जो मंथली मैगज़ीन था उसका मैंने इकोनॉमी वाला जो था सिर्फ 2 पेजेस में मैंने अपने नोट्स जो है वो कवर कर लिए थे, क्योंकि यहाँ पे फैक्ट, डेटा और कम्युनिटीज़ दे बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। कि अभी जैसे हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा डेटा और फैक्ट का डालने का जो ट्रेंड है,
दैट इज़ देयर, बट आपको ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ फैक्ट डेटा ही यूज़ करें या कुछ और यूज़ ना करें। आप कमिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं या आप एक सिंपल डेफिनेशन भी डाल सकते हैं इंट्रोडक्शन में। तो नोट्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर 3 में, क्योंकि काफ़ी नॉलेज इंटेंसिव है, काफ़ी कंटेंट इंटेंसिव है। तो यहाँ पे जो आपके स्किल्स हैं, यहाँ पे आप कितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ पॉइंट्स से नंबर ऑफ़ जो जितना आपका नॉलेज जो आपने गेन किया है वो पेपर पे कितना रिप्रोड्यूस कर सकेंगे, वो भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यूज़ करंट अफेयर्स एक्सटेंसिवली। एक्सटेंसिवली से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आप सिर्फ सोली करंट अफेयर्स पे फोकस नहीं करेंगे। एक हेल्दी मिक्स होना चाहिए, जो आपका स्टैटिक पोर्शन है और करंट अफेयर्स का जो पोर्शन है, आप उन दोनों को जो है एक हेल्दी मिक्स आप उनका बनाइए। और मैप्स भी आप डाल सकते हैं मेमोराइजेशन करने के लिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आंसर राइटिंग हेयर, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट योर नोट्स कि आप उसमें किस तरीके से ऐड करेंगे। सपोज़ कोई टॉपिक है गवर्नमेंट बजटिंग का, तो उसमें जो है करंट अफेयर किस तरीके से आप ऐड करेंगे। करंट अफेयर्स आप देखिए कि इस साल का जो बजट है दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। इकोनॉमिक सर्वे में किन किन टॉपिक्स के बारे में बात कही है। अब देखिए वो काफ़ी बल्कि होता है, आप सारा तो नहीं रीड कर पाएंगे, तो उसका आप समरी रेफ़र कर सकते हैं। तो बजट और समरी दोनों रेफ़र कीजिए। उसके अलावा आप कुछ जो है एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स आते हैं, जैसे अशोक गुलाटी सर के, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिमिलरली अपार्ट फ्रॉम द न्यूज़पेपर कटिंग्स, आपका जो फैक्ट और डेटा है, आप वो जो भी कोई भी कमेटी आई होगी उसका रिकमेंडेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट और डेटा इकोनॉमिक सर्वे से उठा लीजिए, बजट से उठा लीजिए, कुछ और रिपोर्ट आई हो यूनेस्को या किसी और इंटरनेशनल बॉडी का, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे एयर पोल्यूशन से रिगार्डिंग, बीएस नॉर्म से रिगार्डिंग जब सुमित्रा चौधरी कमेटी हैं, तो इस तरीके से कमिटीज़ आप उनको अपने नोट्स में एक्सटेंसिवली डाल लीजिए। और उनका जो शॉर्ट फॉर्म है आप डिजिटल फॉर्म भी बना सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में, या फिर जो भी है आप जिस भी मोड में कंफर्टेबल है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि आपको काफ़ी सारी चीज़ें याद करनी हैं, जैसे आप फूड प्रोसेसिंग का टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो एक छोटा सा माइंड मैपिंग या एक उस तरीके का एक्सरसाइज आप यहाँ पे कर सकते हैं कि हाउ इट स्टार्ट फ्रॉम द इनपुट टू द आउटपुट, कैसे कौन कौन से जो स्टेक होल्डर्स हैं वो उसमें इन्वॉल्व हैं, एंड स्टेक होल्डर वाइज जो है आप प्रॉब्लम्स एनालाइज कीजिए कि फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से क्या प्रॉब्लम है, या फिर जो प्रोसेसर्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से क्या प्रॉब्लम है। जब हम सोर्स करते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, जो फूड हम सोर्स करते हैं प्रोसेसिंग के लिए जिन भी लोगों से, जिन भी फार्मर से, तो वहाँ पे क्या चैलेंजेस हैं, जैसे इकोनॉमीज ऑफ स्केल से चैलेंज, और जो लैंड जो है दैट इज़ ऑल्सो डिक्लाइनिंग, लैंड होल्डिंग इज़ डिक्लाइनिंग, तो दैट इज़ अ चैलेंज फार्मर्स के पर्सपेक्टिव से कि इनपुट्स वहाँ पे फर्टिलाइजर्स और ये सब काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है उनका कॉस्ट, तो दैट इज़ अ चैलेंज। प्रोसेसर के पर्सपेक्टिव से उसको मार्केटिंग करना है, उसको जो सप्लाई करना है दैट इज़ नॉट वेरी डेवलप्ड, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट वेरी हाई। तो इस तरीके से एक माइंड मैपिंग जब आप करेंगे ना, तो दैट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर कोर कॉन्सेप्ट्स एंड इट विल ब्रिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। एंड जब भी आप आंसर लिखेंगे, तो इट विल बिकम वेरी ईजी फॉर यू टू राइट योर आंसर एंड टू रिकॉल द फैक्ट्स। आपको सारा भी याद नहीं होगा, अगर आपको एक स्टेक होल्डर अप्रोच याद होगी तो आप वहाँ पे ऑटोमेटिकली सोच के जो है पॉइंट्स लिख पाएंगे कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स हैं वो फेस कर रहे हैं हम। सिमिलरली हमेशा जो भी आप टॉपिक पढ़ेंगे उसका कॉन्टेक्स्ट और उसका बैकग्राउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कई क्वेश्चंस में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे फूड प्रोसेसिंग या फिर पीडीएस है, तो आप देखिए कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, और रीसेंट चेंजेस जैसे एनएफएस से हमने देखा, या आधार से लिंकेज जो है, या फिर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, तो उनका कंटेक्स्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इंट्रोडक्शन में जो है कॉन्टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, जब भी आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि किस कंटेक्स्ट में वो सवाल जो है वो पूछा गया है यूपीएससी ने, वो आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो फैक्ट डेटा के अलावा आप सिंपल डेफिनेशन भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप बेसिक जो कमिटी का नेम मेंशन कर सकते हैं, जैसे डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड इस बार को सवाल आया था, तो जब 2004 में जब वो एक्ट आया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो उसके बैक एंड में कमिटी थी, तो वहाँ पे मैंने वो नाम मेंशन किया था। तो उस तरीके से आप भी सिमिलर जो एक कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक की, तो आपके आंसर्स जो हैं वो ज़्यादा कोहेरेंट होंगे। आपको भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिखेगी, एग्जामिनर को भी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिखेगी।
नाउ कमिंग टू द राइट आंसर। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसको ध्यान से रीड करें। ध्यान से रीड करने का मेरा मतलब है, जैसे लास्ट ईयर आई मेड दिस मिस्टेक कि एक क्वेश्चन था स्पेस मिशन से रिलेटेड, जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च। तो आई रेड इट मिस्टेकनली। आई थॉट कि उसमें हमने अब तक कितना डेवलपमेंट किया है वो हमें बताना है। रादर इट वॉज आस्किंग अबाउट कि आपको जो उसका इम्पैक्ट है वो किस तरीके से होगा हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल सोसाइटी पे। तो क्वेश्चन को रीड करना जो है काफ़ी केयरफुली, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। अब यूजुअली क्या होता है कि जो क्वेश्चन जो GS3 के रहते हैं दे आर वेरी स्ट्रेट, कि आप एन कैप का प्रोविजन, व्हाट आर दी प्रोविजंस, या फिर सिंपली व्हाट आर दी प्रोविजंस ऑफ जल शक्ति अभियान, या हाउ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर वन, हाउ इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट, या नैनो टेक्नोलॉजी किस तरीके से। तो आपको जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो आपको ऑटोमेटिकली खुद ही ब्रेक करना होगा इन सब पार्ट्स। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है, नाउ इट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको 15 नंबर का एक क्वेश्चन लिखना है जिसमें सिर्फ ये पूछा है कि व्हाट इज़ इनकैप जैसा सवाल है। तो 15 नंबर में आपको हमेशा देखना होगा कि आपको क्या लिखना है वहाँ पे। तो आप देखिए कि आप उसके बैकग्राउंड, उसका कॉन्टेक्स्ट कहाँ से आप लिंक कर सकते हैं कि इनकैप आया क्यों क्यों, क्योंकि आपकी ज़्यादा 14 सिटीज़ जो हैं, इतना वर्स्ट पोल्यूटेड सिटीज़ हैं आपकी ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। Similarly, we are already taking certain initiatives like BS6 norms, जो कि based on सुमित्रा चौधरी कमिटी। तो आपको कॉन्टेक्स्ट जो है किसी भी क्वेश्चन का वो पता होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आप इंट्रोडक्शन में ट्राई कीजिए कि कॉन्टेक्स्ट आप लिखिए अपार्ट फ्रॉम डेटा फैक्ट्स एंड कमिटीज़ एंड द डेफिनेशन दैट यू आर यूजिंग देयर। फिर आप उसको सब पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन था कि हाउ इरिगेशन सिस्टम और वाटर टेक्नोलॉजी, या फिर वाटर इरिगेशन या वाटर स्टोरेज का जो है वो कैसे इम्प्रूव किया जाए। तो वहाँ पे सिर्फ आप फोकस नहीं करेंगे इरिगेशन पे या वाटर स्टोरेज पे, आपको उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है कि वहाँ पे दो चीज़ों की बात है, वाटर स्टोरेज की भी और जो है इरिगेशन सिस्टम की, दोनों को कैसे इम्प्रोवाइज़ किया जाएगा। एंड वहाँ पे भी आप देखिए कि कॉन्टेक्स्ट क्या है क्वेश्चन का। आपने देखा होगा कि वाटर स्ट्रेस, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी किस तरीके से कितने सारे लोग जो हैं और कितने सारी सिटीज़ जो हैं वो वाटर स्ट्रेस में हैं। काफ़ी सारी सिटीज़ 2020 तक वाटर स्कार्स हो जाएंगी। ऑलरेडी हम वाटर स्ट्रेस नेशन है, वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स उगाई जा रही हैं, या फिर वाटर का वेस्टेज है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ओवर यूजेज है, या फिर प्रॉपरली वाटर यूजेज चार्जेस नहीं लग रहे हैं। तो एक बेसिक सा अंडर कॉन्टेक्स्ट जो है आपको वो समझना है क्वेश्चन के पीछे कि उसके बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। यूपीएससी ने तो सिंपल प्लेन क्वेश्चन पूछ दिया, लेकिन आपको देखना है कि उसके पीछे क्या कंटेक्स्ट है। आप इंट्रोडक्शन में वो कॉन्टेक्स्ट से आप एक छोटा सा ब्रीफ आउटलाइन दे सकते हैं, एग्जामिनर को समझ आएगा कि आपको समझ आ गया है क्वेश्चन कि क्यों पूछा है। आपको वो भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन पूछा क्यों गया है, क्वेश्चन कि यहाँ पे क्या सेंस बन रही है। तो उसी के पर्सपेक्टिव में आप जो है फैक्ट डालिए कि एज पर नीति आयोग रिपोर्ट दिस 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 हैज़ हैपेंड, या फिर एज पर नीति आयोग रिपोर्ट इतना सिटीज़ विल गो वाटर स्कार्स। ठीक है। तो फिर आप क्वेश्चन के सब पार्ट्स जो हैं, और सब पार्ट्स में आपको ट्राई करना है कि जब आप हेडिंग्स बनाएंगे, सब हेडिंग्स बनाएंगे, ट्राई टू मेक सब हेडिंग्स फ्रॉम द क्वेश्चन ओनली। आप अपने सब हेडिंग्स को अवॉइड कीजिए, बिकॉज एग्जामिनर को आपको दिखाना है कि आपने जो क्वेश्चन है उसको सही से समझा है, आप उसी के क्वेश्चन को आप आंसर कर रहे हैं, ना कि अपने कोई आंसर कि आपको जो आता है फूड प्रोसेसिंग के बारे में आप वो लिखाए हैं। यूपीएससी ने तो कुछ और क्वेश्चन पूछा था फूड प्रोसेसिंग के बारे में। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि जब भी आप सब हेडिंग्स बनाएंगे तो वो हमेशा क्वेश्चन से ही होनी चाहिए, ट्राई कीजिए अगर पॉसिबल है तो। और फिर उसी के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को सब पार्ट में ब्रेक कीजिए और फिर अपना जो कंटेंट वहाँ पे है डालिए। एंड GS3 के पेपर में जैसे काफ़ी सारे इंटरनल सिक्योरिटी के क्वेश्चंस आते हैं या डिज़ास्टर मैनेजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पे वे फॉरवर्ड बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट इवन साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस में। कि अब एक ग्लूमी सा सिचुएशन है, आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। आप उसको नेगेटिव टोन पे एंड मत कीजिए, ट्राई टू ब्रिंग अ वे फॉरवर्ड देयर। एक पॉजिटिव आउटलुक से हमेशा अपना आंसर जो है आप एंड करेंगे। पॉजिटिव आउटलुक से मेरा मतलब है कि आप इस तरीके से डायलॉग से जो है सिचुएशन संभाल सकते हैं, या डिज़ास्टर मैनेजमेंट में जैसे स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए जा सकते हैं।
कुछ नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स लिए जा सकते हैं, कुछ कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड जो है सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं, तो उनको भी आप एक सब पार्ट में ब्रेक कर लीजिए। सॉल्यूशंस जो देंगे आप पॉइंट फॉर्मेट या फिर पैराग्राफ फॉर्मेट में भी एक सवाल उठता है कि आंसर को हम कैसे करें। GS3 क्योंकि कंटेंट इंटेंसिव है, नॉलेज इंटेंसिव थोड़ा सब्जेक्ट्स हैं सारे के सारे, एंड आप अपनी बात को कन्वे ईजिली पॉइंट में कर सकते हैं यहाँ पे, तो आई सजेस्ट कि आप पॉइंट वाइज अप्रोच जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ओवर पैराग्राफ। बाकी के पेपर्स में आप पैराग्राफ कुड बी यूज्ड, बट थोड़ा सा पेपर 3 में आप ट्राई कीजिए एटलीस्ट जो क्वेश्चंस हैं इकोनॉमी के, इंटरनल सिक्योरिटी के, कि आप उनमें जो है अपना पॉइंट फॉर्मेट यूज़ करें। प्लस आप मैप्स भी यूज़ कर सकते हैं अपने आंसर्स में। डोंट जस्ट थ्रो फ्लो चार्ट्स, मैप्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इट शुड मेक सेंस देयर। इंटरनल सिक्योरिटी, यदि म्यांमार इंडिया का प्रॉब्लम पूछा गया है कि बॉर्डर पे क्या प्रॉब्लम है, आप दिखा सकते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से स्टेट्स हैं, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, सॉरी नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम एंड अरुणाचल। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि वहाँ पे ये स्टेट्स हैं एंड इस तरीके से फॉरेस्ट बॉर्डर्स हैं, यहाँ पे हमारे इंसर्जेंट्स की वजह से प्रॉब्लम है कि उनको बेस मिल जाता है। तो आप मैप की हेल्प से, या फिर वाटर स्ट्रेस सपोज पूछा है आपसे एक सवाल, तो आप उसमें भी दिखा सकते हैं कि कैसे अपर रीजन कश्मीर रीजन में वहाँ पे कोल्ड डिजर्ट नियर बाय दैट लद्दाख रीजन में उसकी वजह से वाटर स्ट्रेस का है, या फिर मराठवाड़ा विदर्भ रीजन में वाटर स्ट्रेस क्यों है, वहाँ पे डिफरेंट टोपोग्राफी है, या फिर वेस्टर्न घाट्स में जो विंडवर्ड साइड है, लीवर साइड है, वहाँ पे वाटर स्ट्रेस क्यों है, क्योंकि वहाँ पे रेन नहीं आती है, ओरोग्राफिक रेंज जब भी होती है। सिमिलरली पेपर इंडस्ट्रीज़ की वजह से यूपी उड़ीसा जैसे रीजन्स में वहाँ पे वाटर स्ट्रेस इसलिए है। नॉर्थ ईस्ट में वाटर को टैप नहीं किया जाता, हार्वेस्टिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रॉपरली अप्रोप्रिएटली नहीं हो पाता। तो आप इन तरीके की चीज़ों को मैप पे जो है वो दिखा सकते हैं। क्वेश्चन को सब पार्ट्स में ब्रेक करने के बाद आप सब हेडिंग्स ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन से बिल्ड करेंगे, एंड देन वे फॉरवर्ड हमेशा एक पॉजिटिव आउटलुक से जो है अपना आंसर वो है आप एंड करें। उसमें आप दिखाइए, आप वहाँ पे कमिटीज़ की रिकमेंडेशंस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई भी कमेटी उस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको लगता है, जैसे शांता कुमार कमेटी है फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड, PDS से रिलेटेड सॉरी, तो आप वहाँ पे यूज़ कीजिए उनके रिकमेंडेशंस की, उन्होंने टेक्नोलॉजी का सजेशन दिया है, या फिर फूड कूपन सिस्टम है बिहार का, कुछ इस तरीके की केस स्टडीज़ भी आप अपने आंसर में डालिए। GS3 पेपर में आप एक्सटेंसिवली केस स्टडीज़ को डाल सकते हैं कि बाकी रीजन्स में, बाकी एरियाज़ में क्या यूज़ किया गया है, कौन से पायलट प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। इवन ऐसे में भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं, या पेपर 1 में भी, बट केस स्टडी जो है पेपर 3 में दे बिकम इम्पॉर्टेंट एंड दे ऑल्सो हेल्प यू स्कोर बेटर। वहाँ पे दिल हेल्प यू टू लिंक, किस तरीके से आप एग्जाम्पल्स देंगे, किसी भी पॉइंट को आप सब्सटैंशिएट करेंगे, तो दैट बिकम्स इम्पॉर्टेंट। राइट आंसर, तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, देन आप क्वेश्चन को रीड करके छोटे छोटे सब पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। फ्लो चार्ट्स अननेसेसरीली नहीं ऐड करेंगे। आई डिडंट ऐड मच ऑफ द फ्लो डायग्राम्स, आई थिंक आई डिडंट यूज़ इन एनी ऑफ द क्वेश्चन ऑफ माइन, तो दैट इज़ अनदर थिंग। प्लस मैप्स आई यूज्ड इट जहाँ पे रिक्वायर्ड था, एंड स्पेसिफिकली इन दोज क्वेश्चन जहाँ पे इट वाज मेंशन्ड क्लियरली कि आपको मैप पे दिखाना है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि जिन क्वेश्चंस में पूछा गया है वहाँ पे तो आप दिखाएंगे ही दिखाएंगे। देन कमिंग टू वे फॉरवर्ड, कमिटीज़ वगैरह आप यूज़ कीजिए, पॉजिटिव आउटलुक में जो अपना आंसर जो है एंड कीजिए। कुछ चैलेंजेस हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं कि इस तरीके के चैलेंजेस जो हैं वो आप एंड कीजिए यहाँ पे। आप अगर मैं कुछ अपने आंसर्स की बात करूँ, तो इस तरीके से आप जो है एक इंट्रोडक्शन में, जैसे मैंने यहाँ पे फैक्ट डाला है, तो जब भी आप फैक्ट की बात करेंगे सो ऑलवेज ट्राई टू इंश्योर कि आप उसका सोर्स मेंशन करें, कि आपने जो फैक्ट यूज़ किया है आपने वो क्यों यूज़ किया है। अब जैसे सवाल है कि विदाउट मच डीपर टेक्नोलॉजी एसिमुलेशन इंडियाज़ फार्म सेक्टर कैन नॉट कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट्स, डू यू अग्री। अब सवाल है आपसे कि आप अग्री करते हैं कि नहीं इस बात से। फिर आपको बताना है कि जहाँ आपको एरियाज़ आइडेंटिफाई कीजिए, आइडेंटिफाई द एरियाज़ विच रिक्वायर सच एसिमुलेशन टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ फार्म सेक्टर। तो आप बाद में इस क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दो सवाल हैं कि जो इंडिया का फार्मिंग सेक्टर है वो टेक्नोलॉजी के एसिमुलेशन के बिना ज़्यादा ग्लोबल मार्केट्स में नहीं डीपर जा पाएगा। तो अब यहाँ पे सबसे पहला सवाल है कि ग्लोबल मार्केट में हमारा ऑलरेडी प्रेजेंस कितना है। तो मैंने डायरेक्टली अपना आंसर उससे स्टार्ट किया है कि इंडियाज़ शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चरल ट्रेड
इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.27%। लेकिन यहाँ पे सोर्स मेंशन कीजिए, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड स्टेटिस्टिक्स। तो जब भी आप फैक्ट या कोड कुछ भी मेंशन करेंगे उसका सोर्स मेंशन कीजिए। देन अब ये एक पैराडॉक्स कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हम एक्सपोर्टर भी हैं, कि अब उसका रीज़न क्या है? दैट वन ऑफ द रीजंस इज़ ड्यू टू लोअर टेक्नोलॉजी एसिमिलेशन। अब वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है? अब मैंने उसको फर्दर सब्सिक्वेंटली पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनपुट साइड एंड आउटपुट साइड, कि देर आर सर्टेन चैलेंजेस टेक्नोलॉजी साइड में जो कुछ इनपुट साइड में है, कुछ आउटपुट साइड में है। तो इनपुट साइड में अगर आप देखेंगे तो फर्टिलाइजर, सीड्स, मैकेनाइजेशन, स्कैटर्ड फार्म्स या वाटर, हर तरीके से जो वहाँ पे टेक्नोलॉजी जहाँ पे यूज़ की जा सकती है वहाँ पे नहीं यूज़ हो रही है। काफ़ी जो बायोटेक्नोलॉजी का यूजेज है सीड्स बनाने में वो नहीं यूज़ हो रहा है। हाइब्रिड सीड्स जो हैं काफ़ी कम सेक्टर्स में यूज़ किए जा रहे हैं, वीट वगैरह के लिए। बीटी ब्रिंजल हैज़ बीन बैंड, या फिर सिर्फ बीटी कॉटन को अप्रूव किया गया है। तो मैकेनाइजेशन की अगर हम देखें तो काफ़ी कम है वो भी, क्योंकि छोटा लैंड है, स्कैटर्ड फार्म्स हैं, लेस देन 2 हेक्टेयर्स का, ऑलमोस्ट 1.2 हेक्टेयर का एवरेज लैंड होल्डिंग है हमारी कंट्री में। तो उसमें मैकेनाइजेशन कैसे पॉसिबल होगा? तो आपको एनालाइज करना है कि ये एसिमुलेशन क्यों नहीं हो पा रहा है। या फिर जो इरिगेशन है दैट इज़ ऑल्सो रेनफेड, जबकि माइक्रो इरिगेशन पे काफ़ी हम फोकस करना चाह रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो नॉट हैपनिंग। सिमिलरली आउटपुट साइड में अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें या मार्केटिंग की बात करें तो डेयरी प्रोसेसिंग है, एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग है, उसकी वजह से हमें काफ़ी लॉस हो रहा है। एज पर नीति आयोग रिपोर्ट आई हैव मेंशन दैट 90,000 करोड़ का जो है लॉस हमें पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस हमें झेलना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टोरेज साइंटिफिक नहीं है। कवर एंड प्लिंथ, बारिश आई और वो भीग गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से अगर वरना तो अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो जाए तो एक ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा और फार्मर्स जो अपनी क्रॉप्स हैं वो ऑलरेडी किसी को बेच सकते हैं। वहाँ पे फार्मर्स को भी इंश्योर होगा कि उनको जो प्राइस और इनपुट अप्रोप्रिएटली मिले, प्लस जो भी कंपनी खरीद रही है उनको अप्रोप्रिएट क्वालिटी जो प्रोड्यूस मिलेगा। तो एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। सिमिलरली मार्केटिंग में काफ़ी चैलेंजेस हैं कि टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में ईयू खासकर फाइटोसैनिटरी मेजर्स लगा देती है, तो हम नहीं कर पाते हैं मार्केटिंग अप्रोप्रिएटली। तो डेयरी प्रोसेसिंग में तो आपने बताया कि दो डिफरेंट, आपने उसको सब पार्ट में ब्रेक किया कि इनपुट साइड आउटपुट साइड, उसको फर्दर पार्ट में ब्रेक किया। प्रोसेसिंग में, मार्केटिंग में, स्टोरेज में, या उससे पहले जब आप इनपुट साइड में बात करते हैं सीड्स, फर्टिलाइजर्स, देयर आर लॉट ऑफ इनपुट्स दैट आर रिक्वायर्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो वहाँ पे आपने एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से यहाँ पे टेक्नोलॉजी ना होने की वजह से क्या चैलेंजेस हैं, या टेक्नोलॉजी क्यों नहीं आ पा रही है क्योंकि छोटा लैंड होल्डिंग है। अब हम बात करेंगे कि कौन से सेक्टर्स में जो है आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं। सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, इरिगेशन है, यहाँ पे भी आप फर्दर सब डिवीजन कर सकते हैं, इनपुट साइड, आउटपुट साइड। बट क्योंकि कभी कभी टाइम का भी कंस्ट्रेन होता है तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है। फिर एक अप्रोप्रिएट जो है कंक्लूजन। सो दिस वॉज माई स्ट्रैटेजी ऑफ GS3। तो आप भी सही अप्रोच के साथ अपने सही नोट्स पे फोकस कीजिए। सही एक आंसर राइटिंग स्टाइल जो है, आपने मेरा आंसर देखा, आप उससे कुछ इनपुट्स ले सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो। और उसी तरीके से जो है आप अपना GS3 का पेपर, आप किसी भी पार्ट को, चाहे वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी हो, डोंट इग्नोर एनी ऑफ द टॉपिक्स। एंड उसके अलावा सिलेबस पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दीजिए, एनालाइज कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कि उनमें क्या पूछा गया है, कौन से सब्जेक्ट पे, टॉपिक पे फोकस किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी प्रेपरेशन को स्ट्रीमलाइन कीजिए, अपनी प्रेपरेशन पे ट्रैक रखिए। एंड देन एक सही नोट्स भी होना है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस इज़ बल्कि हियर, काफ़ी कंटेंट इंटेंसिव पेपर है। तो मेक योर ओन नोट्स रादर देन फॉलोइंग समवन एल्सेस। अपने नोट्स जो है अपनी लैंग्वेज में छोटा छोटा क्रिस्प कंसाइज नोट्स जो है बना लीजिए, जो आपकी दो पेपर के बीच में भी जब आपको टाइम होगा तो आप रिवाइज कर सकें। एंड सही आंसर के साथ अपना जो है अपना GS3 का आप कीजिए। थैंक यू वेरी मच।